નમસ્કાર. મિલકતોના ઝઘડા એ પેઢી દર પેઢી ચાલુ રહેતા હોય છે, પણ મિલકતોના ઝઘડા એ દેશ અલગ થયા પછી ન હોવા જોઈએ. પાકિસ્તાન એક એવો દેશ છે કે જેને ભારતથી દૂર થઈ આજે 75 વર્ષ થઈ ગયા છે, એમ છતાં પણ એને ગમે ત્યારે જુનાગઢ યાદ આવે, ગમે ત્યારે કાશ્મીર યાદ આવે અને ગમે ત્યારે ગમે એને યાદ આવે કે આ તો અમારું છે. જુદા પડી ગયા છો, આ પ્રકારના નિવેદનો આપી અને પાકિસ્તાને પોતાની ઇજ્જત એ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઓછું કરી રહ્યું છે. નાકપાત હરકતો જેને કહેવાય કે જેને ભૂલી જવી જોઈએ. જુનાગઢ ભૌગોલિક રીતે બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કર્યું ને, દેશી ભાષામાં કહું ને તો આ નિવેદન આપીને પાકિસ્તાનીનું બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કર્યું. અને ખાલી એકવાર એક મીડિયામાં રહેવાનો, બફાટ કરવાનો, માધ્યમમાં રહેવાનો મુદ્દો પકડી લે ને, આ મુદ્દો મેં કહ્યું કે આ બાજુ વેરા આ પ્રકારના નિવેદન આપીને જે રોકવાની સ્થિતિ શું, તો કે પાકિસ્તાન પાસે કોઈ મુદ્દા નથી, ટેકનિકલ રીતે કાશ્મીર છે નહીં, ને બીજી બાજુ પાકિસ્તાન એટલે આતંકવાદ બનાવવાની ફેક્ટરી. અને આ દરમિયાન મુમતાઝ ઝહરાએ એક પ્રેસ રિલીઝ બહાર પાડી અને મેં કહ્યું કે પાકિસ્તાન જે જુનાગઢ છે તે અમારું છે, અમારી પાસેથી લઈ લેવામાં આવ્યું હતું અને તેને જ લઈને આજે આપણે ચર્ચા છે તે કરવી છે. આપણી સાથે સંરક્ષણ અધિકારી જયદેવ જોશી છે, જેઓ આપણી સાથે જોડાયા છે સ્ટુડિયોથી, સાથે જ પીકે બશીર છે, જેઓ પાકિસ્તાનથી જોડાયા છે. જયદેવભાઈ, પહેલા તમારી પાસે શું કહેશો? પાકિસ્તાન નાપાક હરકત નથી ભૂલતું. ચોક્કસપણે આ બંને જે આપના ઓપનિંગ નરેટિવમાં વાત કરી એ સાથે હું સંપૂર્ણ રીતે સહમત છું, પણ એક શબ્દનો ઉમેરો કરવા માંગીશું એમાં કે આ પ્રકારનો બફાટ માત્ર નહીં, હાસ્યાસ્પદ નિવેદન, સચ્ચાઈથી વેગળું એવું નિવેદન અને પોલિટિકલી, ડિપ્લોમેટિકલી કે જીઓ સ્ટ્રેટેજિકલી જે અશક્ય છે એવું નિવેદન આપ્યું છે. તો આ ત્રણ બાબતો તો ખરી જ, અને ચોથી સૌથી મોટી બાબત કે શું કામે આવું નિવેદન આપ્યું એ આપણે જોઈએ તો હમણાં જ પાકિસ્તાનના ઉપપ્રધાનમંત્રી કે જે ત્યાંના ફોરેન મિનિસ્ટર પણ છે એ યુકે, યુનાઇટેડ કિંગડમના દોરા ઉપર જવાના છે. એક વાત. બીજું, હમણાં જ યુનાઇટેડ નેશન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલ, સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સિક્યોરિટી કાઉન્સિલમાં નોન પરમનન્ટ મેમ્બર તરીકે 2025 થી 26 ના 2 વર્ષના ગાળામાં પાકિસ્તાન ચૂંટાયું છે. આ કોઈ બહુ મોટો મીર માર્યો નથી, પણ જાણે આવડું કંઈક થાય અને જેમાં સોમાલિયા જેવું આફ્રિકાનું રાષ્ટ્ર પણ ચૂંટાયેલું હોય એવી જગ્યાએ પાકિસ્તાન ચૂંટાય અને ડંફાસ મારે. ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી પણ, શાહબાઝ શરીફ પણ, ત્યાંના ડેપ્યુટી પ્રધાનમંત્રી પણ એક્સ ઉપર જઈને લખે કે હવે પાકિસ્તાન યુનાઇટેડ નેશન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલ સાથે મળીને વૈશ્વિક શાંતિ માટે કામ કરશે. તો આવું કંઈક તમને એક નાનકડું તણખલું મળી ગયું અને એના આધારે તમે તમારો, અને એમાં હું દીક્ષિતજી આપનો શબ્દ ઉધાર લઉં કે પોતાના નાપાક મનસુબાઓને તરાવી દેવાનો જે ખરાબ મનસુબા સાથે આ હાસ્યાસ્પદ નિવેદન છે. ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને ફોરેન મિનિસ્ટરની નીચે જ કામ કરતા ઝહેરા બલોચ, અને એટલે પાકિસ્તાનથી મોહમ્મદ બशीर कुरैशी પણ આપણી સાથે જોડાયા છે कराची जी. बशीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. क्या कहेंगे इस निवेदन को लेके, जबकि आज इतने साल बीत चुके हैं, जूनागढ़ भारत स्थित, गुजरात स्थित उपलब्ध है, वहां पे ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहां की प्रजा भी कुछ तभी भी तैयार नहीं थी कि हमको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, और आज भी वहां की प्रजा को तो दूर तक याद नहीं है. कोई बात तो नहीं, इस तरह का जूनागढ़ के मुसलमान भी इतने खुश हैं कि आप बात मत पूछो. और ये निवेदन से पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही. हाँ, तो आपने मुझसे पूछा. मेरा प्रश्न ये है कि आप पहले भी 1947 में जूनागढ़ की जनता थी, जूनागढ़ के जो लोग थे, तो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे. आज तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, कोई क्वेश्चन ही नहीं है. तो पाकिस्तान के जो ये प्रवक्ता है उसने ये स्टेटमेंट क्यों दे दिया? क्या इस स्टेटमेंट का फायदा मतलब होता है? देखें, 1947 में जब दोनों मुल्कों के बंटवारा हुआ तो वहाँ के जो जूनागढ़ के नवाब थे सर मोहब्बत खान जी, उन्होंने उस टाइम पे ये ऐलान किया था कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहूँगा. तो जब से लेके अभी तक ये 75-76 साल हो, जूनागढ़
इस पाकिस्तान का हिस्सा है तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसका केस है, तो वो तो सबको पता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज है, उसको तो कोई छुपा नहीं सकता। मतलब तब भी पाकिस्तान तब भी जूनागढ़ जूनागढ़ की आवाम तैयार नहीं सर, थी, आज तो कुछ बात ही तभी नहीं भी है। वहां की जो आवाम है, जो प्रजा है, उसको तभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं आना था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तभी मसला करके रास्ता निकाला था, तो वो बात ही खत्म हो गई। फिर इस टाइम पे इस बात को दोहराने की क्या मतलब है? क्यों इस बात को मुमताज जहरा ने फिर से दोहराई है? देखो, ये दोहराने की चीज नहीं है। एक चीज है कि अगर हमारी कोई भी चीज अगर गुम हो जाती है, हमें नहीं मिलती और हम देख रहे हैं सामने के वो सामने नजर आ रही है, तो उसके ऊपर तो पर्दा नहीं डाल सकते ना, वो तो है पाकिस्तान की, वो तो एक रिकॉर्ड में मौजूद है। कोई ऐसे सर क्या दावा तो बात नहीं कर करते रहे हो, हैं कोई क्या बात पाकिस्तान। करते हो? जो कश्मीर भारत का था वो कश्मीर चला गया, बार बार भारत बोल रहा है, और आज जूनागढ़ कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, वो पूरा जी। हाँ जी, किशन भाई और कश्मीर एक आजाद है। मैं पाकिस्तान में दावा किया कि वो मेरा है, हिंदुस्तानी दावा करता कि वो मेरा है, लेकिन कश्मीर कहते कि हम आजाद हैं। सुन लीजिए बशीर तो साहब, रहना चाहिए ना, रहना देना ऊपर भी फिर अपना बशीर हाथ साहब। भारत को हटा दो, उनको आजाद रखें। बशीर साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं न्यूज रूप गुजरात के गर्जनाद के प्लेटफॉर्म पे। जूनागढ़ से, उसी जूनागढ़ जिसकी आप बात कर रहे हो, उसी जूनागढ़ से फौज में जुड़ने की, इंडियन आर्मी में जुड़ने की ट्रेनिंग लिया हुआ मैं, भारतीय सेना का अधिकारी, और मेरे जैसे कई सारे लाखों कैडेट्स जो जूनागढ़ में थे, और जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे तभी कारगिल युद्ध हुआ था बशीर जी। और आपने बोला कि अगर हमारी कोई चीज खो गई हो तो उसके ऊपर दो तीन चीजें बताता हूं। आपका ईस्ट पाकिस्तान भी तो खो गया था, जब विश्व में सबसे ज्यादा सैनिकों, 90,000 से ऊपर सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे, उनको तो लेने आप आए नहीं। आपकी एक और चीज खो गई थी कारगिल के युद्ध में, कई सारे आपके पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों के डेड बॉडी लेने आप नहीं Yes. आए, वो चीज भी आपकी खो गई थी। उनको भारतीय सेना में कार्यरत रिलीजियस टीचर मौलवी जियों ने मुस्लिम राइट्स के अनुसार पाकिस्तान झंडे के साथ उनकी अंतिम क्रिया की, उनको लेने तो आप आए नहीं। ऐसे कई सारे पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी भारत की जमीन पर मरते हैं, उनको तो लेने नहीं आते हैं। क्रिकेट में आके अपनी इज्जत यहां गवाते हो, उनको भी लेने नहीं आते हो। कभी उनको भी लेने आओ, और जूनागढ़ से ट्रेनिंग लिया हुआ मैं और मेरे जैसे कई लोग भारत के जूनागढ़ में आपका स्वागत करेंगे। बशीर जी, हमारी जी बताइए। मैं चाह रहा हूं कि आपने सर सारी बातें करी, उनको लेने नहीं आते, उनको लेने नहीं आते। कोई भी बंदा अपनी जो मर्यादा है उसकी वो कैसे छोड़ेगा कि मैं बुज़दिल हूं या मैं कोई ऐसा बंदा हूं कि मुझे परवाह नहीं है, मेरे सैनिक अगर मर गए या मेरे सैनिक शहीद हो गए तो मेरे को उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र सबको होती है, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या किसी भी कोई भी मुल्क हो, फिक्र सबको होती है। लेकिन जब दोनों मुल्कों के आपस में अगर अच्छी बात हो, अगर दोनों मिलके चले, किसी भी मौजू पे पर बैठ के बात हो सकती है। जरूरी नहीं कि खून खराब हो या जंग हो या लड़ाई हो, उससे प्रेस करना चाहिए, हम भी वो नहीं चाहते हैं। लेकिन बैठ के बात और टेबल टॉक पे बात करके दोनों देश को बराबरी का मुकाम देके उनके ऊपर फैसला होना चाहिए, चाहे वो जूनागढ़ का हो, सैनिकों का हो, सरहदों का हो, या और भी कोई खेल के मैदान में हो, किसी भी लेन देन में हो, कारोबार अच्छा चले। हम चाहते हैं कि वहाँ की जनता भी खुश रहे, यहाँ की जनता भी, हमारी पाकिस्तान की भी खुश रहे। वो चाहती है कि हम लोग बशीर जी, जूनागढ़ की जनता खुशी है भारत में, माणावदर की जनता भी साथ में खुश है। आपने 2020 में भी यही किया था कि एक नक्शा तैयार कर दिया, उसमें दिखा दिया कि पाकिस्तान का माणावदर और जूनागढ़ का पाकिस्तान का हिस्सा है। आज दोनों के मुस्लिम लोग भी खुश है, मुस्लिम लोग भी भारत के साथ रहना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते। और नवाब थे, नवाब के नवाब सब चले गए, अभी तो वो मसला ही नहीं है। और जूनागढ़ तो देखो कहाँ है, वो तो आपकी बॉर्डर भी नहीं लगती है पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगती, सही बात है। लेकिन एक चीज बताइए ना, मुमताज ज़हरा मैडम को वही चीज बताइए।
कैसे दबा रहा है? इसको क्यों वो नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, नवाब साहब ने बोला वो जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है, तो यहाँ तो पाकिस्तान की पब्लिक या जूनागढ़ से आने वाले जितने भी लोग हैं वो तो सब यही नारा मार रहे हैं कि जूनागढ़ इस पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो जूनागढ़ का जो केस है वो चल रहा है ना, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे सबको पता है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी है, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसे तो दावा नहीं कर रहा है। तो वो पाकिस्तान बलूचिस्तान का केस भी चल रहा है बशीर जी, बलूचिस्तान का भी केस चल रहा है। जूनागढ़ लिबरेशन आर्मी नहीं है, पर बलूचिस्तान ये बात लिबरेशन तो आर्मी है जो उधर कत्लेआम करती है। जी सर, आवाज सुनो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम सुना होगा आपने, आपका ही बलूचिस्तान है। जी जी, आवाज साफ नहीं आई आपकी, क्या आपने सवाल किया? बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस बलूचिस्तान, वो आजादी चाहता है आपसे, बिल्कुल। पर जूनागढ़ में ये कोई नहीं चाहता। सूबों की आजादी हर सूबे का हक है, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन है तो तो पाकिस्तान ना। जूनागढ़ के पाकिस्तान लोगों का भी हक है कि वो भारत के साथ रहे, और आप जूनागढ़ के बारे में बोलना बंद करें। क्यों जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है सर? जूनागढ़ को क्यों आदमी बोलना बंद करेगा? तो नहीं करेगा, बलूचिस्तान कभी भी आपका नहीं करेगा। हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान भी हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान में है, वो हिंदुस्तान में थोड़ी है बलूचिस्तान। मतलब ये ऐसा हो गया बशीर जी कि जो आपका है वो हम दोनों का, और बलूचिस्तान मेरा भी है वो मेरे पाकिस्तान बाप का। जी। ये तो यही मिसाल हो गई कि जो विवादित है, जो डाउटफुल है, वो हम दोनों भाइयों का, और जो मेरा है वो तो मेरा खुद का, मेरे बाप का। तो ऐसा ही होता है ना भाई, ये तो ऐसा जिसको जब जो होता मिला है उसके तभी हम आपसे बांग्लादेश छीन लेते हैं। ऐसा जब होता है तभी इंडियन आर्मी लाहौर तक अपनी टैंक लेके आ जाती है। ऐसा होता है तभी कारगिल में आप पीछे हट करके भागते हो। ये ये वक्त आने पे पता चलेगा, अभी ये और वक्त आया नहीं है। हम आपने नहीं बीच में टेबल टॉक की बात की थी बशीर जी, टेबल टॉक की बात की थी ना आपने। सर, आप तो भाईचारा मोहब्बत चाहते हैं, मोहब्बत। भाईचारे भाईचारे आप की लोग ही बात करते हैं, टेबल टॉक की आपने बात की ना बशीर जी अभी। जी जी। परवेज मुशर्रफ को हमने इनवाइट किया, दिल्ली में घुमाया जहां वो रहे पड़े, आगरा में ताजमहल दिखाया, मिठाई खिलाई, शायद राजस्थान में कहीं ख्वाजा जी की मजार पे भी गए थे। रात को 12 बजे क्यों भाग गए टेबल टॉक करते करते? मसला हल क्यों नहीं किया? और दुनिया नहीं है कि क्यों भाग गए थे। अब इनकी तो अभी बात का बोलिए ना, क्या पता। तीसरा बहाना बोलिए। लड़ाई के मैदान का बहाना आपने बता दिया, बलूचिस्तान का बहाना बता दिया, अब टेबल टॉक का भी बहाना बता दो कि क्यों नहीं हुआ टेबल टॉक। तो बहाना नहीं है, हकीकत से आदमी को मुंह नहीं फेरना चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम हो। देखो, आप वो वाली बात क्यों नहीं करते हो कि यार दोनों मुल्क के अंदर एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो कारोबार के जितने हवाले लोग पाकिस्तान में हैं उतने तो हमारे यहाँ पे मुस्लिम बिरादर हैं जिनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के भारत माता की जय बोलते हैं। आ जाओ, आपको भी संभाल लेंगे, भाई। आप अच्छे से बोलते रहेंगे। हो आदमी, देखो ना, अच्छी खबर जाएगी, अच्छा कम से कम पैगाम बांग्लादेश से जाएगा आप तो क्रिकेट में नहीं लाजमी हारोगे। बात है, तारीफ ही होगी। आप लोग अच्छा अभी काम आ कर रहे रहे हो, हो, 3 दिन पहले गलत काम बांग्लादेश कर से क्रिकेट में कम से कम वो नहीं हारोगे। बाबर आजम को रख लेंगे पानी पिलाने के लिए। बाबर आजम को पानी पिलाने के लिए क्या, तुम्हारे को सबको पानी पिला देगा? बाबर क्या समझते हो आप? पाकिस्तान ने पिला देखो, दिया 3 दिन पहले, अब बांग्लादेश ने पिला दिया पानी आपको। नेशनल हीरो है ये, फर्स्ट इनिंग्स में क्रिकेट का डिक्लेयर बादशाह। करने के बाद आ रहे हो बांग्लादेश से आप। एक क्या लूज फर्क टॉक, है? पाकिस्तान का प्रोग्राम अनवर मकसूद का लूज टॉक, उसमें बांग्लादेशी कैरेक्टर बन के मोइन अख्तर का एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा आप कैसे मजाक उड़ाते थे बांग्लादेश का। भाई, बांग्लादेश लूज भी टॉक हमारे देखा भाई होगा है। आपने बशीर जी। इंडिया अच्छा खेलती है क्रिकेट में, हम इंडिया की तारीफ करते हैं, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। नहीं नहीं, वो तो हमारे हैं, आप अनवर मकसूद की बात कर लो। अनवर अच्छे मकसूद तो खिलाड़ी आपका है इंडिया ना, के भी लूज हमारे टॉक जो चलाता है। कैसे आप मजाक उड़ाते थे बांग्लादेश का?
और क्या किया बांग्लादेश ने 3 दिन पहले क्रिकेट टीम ने? लड़ाई की बात छोड़ो, फौज की बात छोड़ो, नहीं हो पाएगा आपसे। बांग्लादेश ने अच्छा खेला, जबरदस्त खेला, तारीफ होनी चाहिए, इनके इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ हो रही है। हम और आप नहीं भी करें तो क्या हुआ, उनके हम वही इंटरनेशनल कह रहे लेवल हैं पर तारीफ बशीर हो रही है। जी इन्होंने कि आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। हम हमारा जो है वो जरूर मांगेंगे, लेंगे, है हमारा। आप हमारे जूनागढ़ में अपनी नाक ना अड़ाए बस। देखो, जूनागढ़ तो आखिरी दम तक पाकिस्तान और रहेगा। आप चाहे जितना भी कब्जा कर लें या इसको दबा लें, ये दबने वाली बात नहीं है। अब यहाँ की जनता भी उसको जानने लग गई है। तो जूनागढ़ इस पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। याद भी नहीं करता कोई पाकिस्तान को, कुत्ता भी नहीं याद करता पाकिस्तान को कोई याद भी नहीं कर रहा है। जूनागढ़ के लोगों को पता भी नहीं है पाकिस्तान करके कोई देश है कि नहीं है, वो भी नहीं पता है उनको। इनको नहीं क्या पता है, बात करते हो सबको आप? पता है। आपके क्या हमको तो पता है, उनको लेना देना नहीं है, सब खुश है, किसानी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। हमको पता है, ये कहने से कुछ नहीं होगा कि किसी को पता नहीं कि पाकिस्तान कोई देश है। ये पाकिस्तानी वाहिद देश है जो कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की नींद नहीं आती है किसी भी शोबे में। नींद पाकिस्तान नींद तो आती है, पर आपके वहां जो आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है ना, जो हरदम चालू रहती है। तो हम भी आतंकवादी के खिलाफ हैं। हम आतंकवादियों को आप देख रहे होंगे, रोजाना कितने मौत के घाट चले जाते हैं। हमारी सेना, हमारे फौजी लगे हुए हैं उनके ऑपरेशन पे। हम आतंकवादियों के साथ थोड़ी, हम तो आतंकवादी कोई भी हो, कहीं बशीर का जी भी हो। एक और बात सुन लीजिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, न्यूज रूम, उसका टैगलाइन ही है गुजरात नो गर्जनाथ, मतलब गर्जना करना, गरजना। और गरजता है शेर, और शेर की पूरी दुनिया में जो पहचान है, उसका एक घर है एशियाटिक लायन का, तो वो गुजरात में है, वो जूनागढ़ में है, जूनागढ़ के आसपास के इलाके में है। तो ये किशन जी और दीक्षित जी जो ये दोनों यहाँ के शेर हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम ये बात मत करो कि जूनागढ़ में बगावत हो रही है, जूनागढ़ के लोग पाकिस्तान में जुड़ने की बात कर रहे हैं। कम से कम इतना मत बोलिए। जी कोई भी नहीं सुनेगा मशहूर है। पाकिस्तान में। क्या आप बकवास करते रहे तो हर बार आप जूनागढ़ हमारा, आप जूनागढ़ की बात करते रहो। कर लीजिए, किसान कश्मीर भी हमारा है, और वो भी हम वो लेकर पीओ के आएंगे। कब चला जाएगा, कब पता नहीं चलाएगा, चलेगा पता आपको। भी नहीं चलेगा आपको। आनंद जी, जूनागढ़ का फैसला हो जाएगा, आप इतनी चिंता ना करें। और कश्मीर का भी चिंता ना करें, वक्त आने पे सब चीजें। बशीर जी, आपको नवाब को पता भी है, भगा दिया था उस समय पे, आजादी के टाइम पे। हैदराबाद के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे उस समय के हाँ, बाद। क्या बात करते हो। और आज भी लाहौर की जनता को जाकर पूछ लो, आप कराची में बैठो, कराची में जाकर पूछ लो, वहां की 50% से ज्यादा आवाम भारत के साथ जुड़ना चाहती है। कम से कम भूखा तो ना मरना पड़े। भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब है? मोहब्बत करना चाहती है कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा करो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आओ जिसके अंदर दोनों मुल्कों की जनता आजाद रहे। बशीर एक जी, दूसरे से- प्यार मुहब्बत उसके लिए सब रेडी है, वो बना रहे। लेकिन पाकिस्तान वो बात ही करता है, फिर करता नहीं है प्यार फिर मोहब्बत। होता क्या है, आप प्यार मुहब्बत की बात करते हो, फिर आपकी प्रवक्ता आके बोलती है जूनागढ़ हमारा है, वो हमारा है। तो आपके वो वहां है ना, कश्मीर में आपके आतंकवादी संगठन वाले लोग कभी भी कुछ भी कर देते हैं। कैसे होगा प्यार मुहब्बत? आप देखो, प्यार मोहब्बत जब ही होगा ना कि जिसका जो हिस्सा है उसको मिले, उसको दिया जाए। बोले ठीक है, ये हमारा है, के अलावा कुछ नहीं। बशीर जी थोड़ी देर के लिए जूनागढ़ को भूल जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और वो आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी बाशिंदे के तौर पे भी शायद इसका उम्मीद रखूंगा ऑनेस्टी से जवाब देंगे। हर बड़ा पाकिस्तानी आईएसआई का अधिकारी, ऑफिसर, या फौज का जनरल, या हर एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन यूके में, यूरोप में घर क्यों बसाता है? हर कोई वो जो यहाँ पे करप्शन करके यूके भाग जाता है, उनको आपको वहां से क्यों बचा के लेके आना पड़ता है? कुछ लोग तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो परवेज मुशर्रफ और ऐसे लोग, इनको अपनी मौत के बाद भी पाकिस्तान में कब्र
पेन नहीं मिल पाती है। तो अगर ये लोग भी नहीं रहना चाहते, आपके खुद के लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, इसके ऊपर आप कुछ बोलोगे? नहीं है क्या इन सबके घर यूरोप में? सबके क्यों नहीं है, इनके अलावा है। तो ये क्यों है? ऐसा भारत में नहीं है। पाकिस्तान की हालत खराब है, बदतर है। जैसे ओपनिंग नैरेटिव में दीक्षित भाई ने शायद कहा था, दीक्षित जी ने ये बोला कि ऐसा एक आपने आतंकवाद फैलाने वाला एक अजगर बना लिया आपने। और मैं बात करूं दाऊद इब्राहिम की, जो wanted है, उसको पाकिस्तानी सैन्य संभालता है। और अभी एक आया वेब सीरीज कंधा राइज, उसका मसूद अजहर सब वो पाकिस्तान की चाल थी, पूरी चाल पाकिस्तान की थी। शांति की बात कर रही है तो मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को क्यों प्रमोट करता है? अफगानिस्तान को मोहरा बनाया तालिबान के साथ मिलकर। तालिबानी भी इनके सपोर्टर है, ये तालिबान के सपोर्टर है। ये सिर्फ आप लोग बोल रहे हो। अच्छा, ये हम बोल रहे हैं। अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि आपके यहाँ पे आतंकी हमले होते हैं, दहशतगर्द आते हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है आप नहीं बोलते हो? आपकी आईएसआई नहीं बोलती है कि हमने इतनों को मारा, इतनों को ये किया? आप न्यूज पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो न्यूज में? ऐसा करने वाले का अंजाम हमारी सेना क्या करती है? हम यहाँ पढ़ते हैं, हम आपका न्यूज़पेपर डॉन भी यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि दहशतगर्द बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर कहाँ पे? दाऊद इब्राहिम कहाँ पे? आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी ग्रे लिस्ट में थे। जब सऊदी अरेबिया के प्रिंस आते हैं तो गाड़ी चलाने का काम किसके प्रधानमंत्री करते हैं? कौन से प्रधानमंत्री के घर की भैंसों को भी बेचने की बातें होती है? ये भी हम पढ़ते हैं, आपके न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम। यहाँ के जो लीडर है वो कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, ये मोहब्बत का पैगाम है। बड़ी बात है बहुत। तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तभी तो एक दूसरे के करप्शन में साथ में जुड़े हुए हैं। क्या पूरी दुनिया नहीं जानती शहबाज शरीफ कैसे बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर? करप्शन में जुड़े हुए हैं। बाकी जरदारी और शहबाज शरीफ किस तरीके से इकट्ठा हुए हम नहीं जानते। आप इल्जाम उससे दुनिया से बाहर निकलेंगे तो ताल्लुकात अच्छे होंगे ना। आप तो हर चीज में इल्जाम। अरे हम नहीं लगाएंगे इल्जाम, बट आपके देश में मुद्दा छेड़ा ही नहीं। जूनागढ़ की बात बोलकर मुद्दा आपने छेड़ दिया और हमारे पर बात कर दो इल्जाम की। जूनागढ़ भारत का है, था और रहेगा। मुद्दा तो आपने छेड़ दिया साहब। भाई मुद्दा हमने नहीं छेड़ा, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे छिड़ा हुआ है। आज से 1947 से हमने नहीं आज कि पाकिस्तानी जूनागढ़ पाकिस्तान, वो तो है पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडिया ने कब्जा किया हुआ इसके ऊपर। मुमताज मैडम को पूछ लेना कि मैप में जूनागढ़ है कहाँ, कराची से जूनागढ़ जाने के लिए कितना डीजल लगेगा, क्या वो अपने पास है नहीं है, वो जरा पूछ लेना। वो बहुत दूर है। डीजल कितना लगेगा सब पता है, और कहाँ से जाना है वो भी पता है। कैसे जाओगे? वैसे ही पता है ना, जैसे 65 में या 71 में आपने कुछ प्लान बनाया था कि सुबह का नाश्ता कहीं करेंगे, दोपहर का खाना जैसलमेर में होगा, रात का खाना दिल्ली में करेंगे। ऐसा ही सपना ना, ऐसा ही डीजल का आपको पता है, ऐसा ही रस्तों का आपको पता है। और लुंगे वाला में क्या हुआ? आपकी पाकिस्तानी टैंकों के ऊपर चढ़ के हमारी आर्मी की पंजाब रेजिमेंट, उनकी कंपनियों ने आपकी स्क्वाड्रन खत्म कर दी और भंगड़ा किया था। भाई भी आपको डीजल का पता था, रस्तों का पता था। पंजाब देख लो क्या हुआ आप लोग का। क्या हुआ? बैरियर आएंगे। भाई पंजाब ताकतवर मुल्क है पाकिस्तान का। पंजाब के तरफ आप पंजाब आपका प्रोविंस होगा, हिंदुस्तान में भी पंजाब है जो खदेड़ देगा। बिल्कुल है। और हम तो चाहते हैं, चलिए उसके ऊपर पॉलिटिकल विवाद भी हुआ था, पर हम तो चाहते हैं, एक टाइम के हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने आपके कायदे आजम का जो रेस्टिंग प्लेस है वहां पे आके कहा था कि ये
ठीक ठाक इंसान थे, बुरे इंसान नहीं थे। हमारा कोई राजनेता ऐसा बोल सकता है? आप बोल पाओगे उस भगत सिंह के बारे में जिसका घर उस तरफ था? मतलब रहे थे, पढ़े थे वहां पे। आप बोल पाओगे कि जीना जो थे वो पढ़ाई लिखाई, रहना, शादी, पुश्तैनी, घर सब इंडिया में था और इंडिया को मानते थे, और आज भी है, और आज भी है। में थे तो इंडिया में वो एक पार्टी के लीडर थे, वो पार्टी चला रहे थे। इसके बाद भी इनकी जिद्दोजहद से ये सारा जो हुआ है, जो आज़ादी मिली है हिंदुस्तान या पाकिस्तान को, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब का बड़ा रोल है, इसमें महात्मा गांधी का बड़ा रोल है। इनकी जिद्दोजहद से ये आज आज़ाद आप भी बैठे हुए अपने मुल्क में, आज आज़ाद हम भी हमारे मुल्क में बैठे हैं, नहीं तो हम अभी तक अंग्रेजों की गुलामी करते होते। एक चीज आप देख रहे हो दीक्षित भाई, जब से हमने डिस्कशन शुरू किया है ना किशन जी, दीक्षित भाई के, तब से बशीर जी के तेवर और बात बदल तो रही है। अब वो कम से कम टॉक करने की बात, सुलह की बात कर रहे हैं। तो यही चीज मेरा रिक्वेस्ट है न्यूज रूम से भी, और बशीर जी आपको भी, ऐसे ही सुलह की बात करो, ऐसे ही आसमान में मत थूकिए, वो थूक आपके चेहरे पे ही आएगा। बताइए, आपसे दुश्मनी नहीं है हमारी, आपके उधर जो पॉलिटिशियंस ऐसे बयान देते हैं ना, उनको आप समझाइए, ये हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और समझाइए, जूनागढ़ भारत का है, भारत का था और भारत का रहेगा। किसी का स्टेटमेंट, बकवास स्टेटमेंट देने से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। समझाए जरा मुमताज जहरा को। लेकिन बशीर जी, हमसे जुड़ने के लिए भारत की सरजमी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जयदेव भाई, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। તો બફાટ કરવામાંથી પાકિસ્તાનના નેતાઓ નવરા નથી થતા। જૂનાગઢના નકશામાં પણ ખબર નહીં હોય, જૂનાગઢની જનતાને પૂછવા જાઉં તો એને ખરેખર પાકિસ્તાન કઈ દિશામાં છે તે ખબર નહીં હોય, અને આવા લોકો આવીને બફાટ કરી જાય કિશન। કારણ કે પાકિસ્તાનનું કામ જ આ છે, અને આજકાલ કોઈ મુદ્દાઓ છે નહીં, આતંકવાદી સંગઠનોનો સહારો લઈને પાકિસ્તાને ભારતને કમજોર કરવાના પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આજકાલ આપણા દેશની અદ્યતન સેના એ આતંકવાદીઓના જે મનસૂબાઓ છે એને બોર્ડરની પહેલી પાર જ ખતમ કરી નાખે છે। એર સ્ટ્રાઇક જેવી ઘણી ઘટનાઓએ પાકિસ્તાનને હચમચાવી દીધું। ત્યારે જૂનાગઢ જેવા નિવેદનો આપી અને પાકિસ્તાન એ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પોતાની ઓકાત ઓછી કરે છે, અને એટલા માટે જ પાકિસ્તાનના દરેક મનસૂબાઓ ભારત સામે ફેલ જાય છે। ગર્જનાદમાં હાલ આટલું જ। ગર્જનાદ સાથે જોડાવા માટે આજે જ ન્યૂઝરૂમને સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને જોતા રહો અમારી સાથે ન્યૂઝરૂમ। નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય।